आदमी में जाता है तो कैसे कैसे जाता है, किस पॉइंट पे एंटर होता है वो? Sir, I would like to ज- have जब my question. जब एम्ब्रियो बनता है तब लाइफ आती है, ऐसा लगता है। Sir, may I have my ओके, question? हु इज स्पीकिंग प्लीज? I am Dr. Ajit सेकंड Kadas क्वेश्चन from पूछिए। Chennai. अनिल कुमार जी। नो, मुझे I, मुझे I, दिख नहीं I रहा am, है सर। मैं I मैं am, इससे I am, पहले वो हाथ रेस किया हुआ है, डॉक्टर I कनक am, जी। yes. डॉक्टर See, डॉक्टर yes. कनक अजीत दा। हाँ, ओके। Yes, sir. Yes, I am from Chennai. ओके। See, in clone technology, cloning, from a parent, a cell is taken out and grown in the laboratory that grows similar to the parent. See, a parent is there, a cell is taken out, they transfer the nucleus in the lab. From that, very similar organism is a dolly sheep. A similar organism is growing. How will you interpret this reincarnation in that case? A cell from its mother is taken out and grown. It is क्या पता नहीं exactly किस like चीज its को बोला था। mother. How will you interpret this? नहीं, दिस क्वेश्चन इज टू whom? Anybody, any learned person in this group. Can I answer? नहीं, आई थिंक देव कुमार Cloning, साहब कैन गिव वेरी वेल आंसर टू दिस। cloning That technology. there are two different things. One is a body and another is a soul, or whatever you can call it, atma. Body is namkarm and atma is different thing. Okay sir, ये देव कुमार साहब, can you explain this? A single cell is ये taken माइक out ऑन its कर mother. लीजिए सर। माइक ऑन कर लीजिए सर। It is called Our cloning. professor was telling Dr. Kannakaidas is a learned professor. He is really, I think he should be part of our JS family. Ahimsa work is being carried out by him. There are many things he does. He is running a journal called Mukude Chatratraya. So much for him, but so little for him, brother. Sir, I cannot really answer. You said you asked for some learned person. I don't think I am one of them. So you foxed me on that. My point is, as Anil Bhai was giving a clue, you are talking two different things. You are giving an house for a soul, so-called, biological storehouse, actually, the cell, etc. We are talking about a soul entering that kind of system. So that since soul cannot be pursued, since it's atindriya, then we are in fix. That's why we are expecting scientists to come into the field. How the scientists can enter it is atindriya. Karma is nirbhoga mantyam. Tattva Sutra says all these karmas cannot be put into instruments and even the senses. But coming to your question, yes, lot of cloning, etc., people are doing reproduction. And since the souls are infinite, anything can come and keep. The classical case is the Yashodhara Kavyam. You are talking about biological one, the that bird that was not even biological. It was just a shape made out of flour, rice flour. Even there, a soul came and entered into that and wanted to have the pleasure of it. So it's a complex one, and that we are talking about soul. The physical world is there. That is what my thing. But yeah, No, sir. My question is, a cell from its mother is taken out. That cell grows similar to the mother. Which soul has come into that? For so the that is what sisters? I'm saying. Yes. The soul which is fit to be there, Ah, qualified to be there, it enters. You see, that is because which wants to take that body. That is what happening. So the qualification to enter. We many times ask. That Kannadasan also sang. When did you say? Why did you come to? And I don't know how I came into the world. The point is, the soul picks up the residence there. That's how it is. There's the Gati Anupurvi reaches there, takes it to that. Since the number is infinite, and which one will come, there is a competition to reach there.
So that is what I am thinking. Yeah. Okay, thank you, I thank think you. it is correct. Yeah, yeah. And Ramesh ji, जी सर, मैं तो मैं ये कह रहा था सर, इसको क्वेश्चन आंसर की बजाय अगर डिस्कशन में ज्यादा कन्वर्ट करें तो अच्छा है। राउंड टेबल टॉक डिस्कशन है, सो सभी लोग जो बोलना चाहें बीच बीच में बोलते रहे, बजाय एक से आंसर देने के। लेकिन मैं अभी यहाँ ये इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जो क्लोनिंग करने की बात है वो ये है कि क्लोनिंग के द्वारा आप शरीर का विकास कर सकते हैं। सेम जो माता पिता का है उसी के अनुरूप शरीर बनेगा क्लोन का। और लेकिन कर्म का जो फल है, वो कर्म जो साथ आत्मा लेके आती है पिछले जन्मों का, उसका जीवन में फल और उपभोग, जिसको कहना चाहिए उपयोग नहीं, उपभोग जो करना, भोग करना पड़ेगा। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा भोगना पड़ेगा। वो कर्म फल वो पीछे का बंधा हुआ आएगा आत्मा के साथ। लेकिन हाँ, शरीर का विकास माता के पिता के शरीर के अनुरूप होगा। धन्यवाद, मेरी बात यही जी। ओके। हाँ जैन साहब, अभी ज्ञानचंद जी साहब ने एक प्रश्न रेज किया था, जी। तो अभी इनका प्रश्न बिल्कुल सही था कि आदमी का जीव उसमें जाता कैसे है। तो ये भी अगर थोड़ा एक्सप्लेन, अगर आप इजाजत दे तो थोड़ा सा जितना मेरे को आता मैं इनको बता सकता हूँ कि कैसे जाता है। बात अगर आज्ञा दे तो, बोलिए अनुमति दे तो मैं। जी, जी बोलिए तो बोलिए। ज्ञानचंद जी साहब का प्रश्न था कि जब जीव आता है तो कैसे प्रवेश कैसे करता है। तो जैसे प्रभु महावीर का जब जन्म हुआ था तो पहले देवानंदा ब्राह्मणी के कुक्षी में आया था, और हरिणगमेशी देव ने उनके कर्म के कारण ही उनको फिर त्रिशला के में शिफ्ट कर दिया था। तो ऐसा आगम में वर्णन आता है कि जैसे जब जीव निकलता है तो जैसे गर्भवती माता को जो बच्चा पैदा करने में जो पीड़ा होती है, उससे 100 टाइम्स गुना जब जीव निकलता है तो पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसे ही जब जीव किसी जीव में प्रवेश करता है, तो जब उसका जीव सबसे पहले प्रवेश करता है तो उसको भी पीड़ा का अनुभव होता है, लेकिन अपने को पता नहीं चलता है। ऐसा ऐसा कभी सिद्धांतों में मेरे पढ़ने में आया है। तो शायद ये जो प्रवेश का जो मार्ग है वो किसी भी रूप में जा सकता है। बॉडी में हर जगह चैतन्य शक्ति है, चैतन्य के द्वारा वो प्रवेश करता है, जहां तक मैं समझता हूँ। ये ज्ञानचंद जी साहब का प्रश्न का उत्तर शायद उनको मिल जाए। Can I add ये something? धर्मचंद जी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे ये ज्ञानचंद जी साहब के प्रश्न पर? ध्रुति जी कुछ बोलना चाहती है। हाँ, Please, धर्मचंद जी please in साहब को। English. Please in English. Okay, हाँ, so मैं I would just नहीं, like to जस्ट add. वेट। Okay, ये धर्मचंद जी साहब को जरा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, फिर आपको बोलता हूँ धृति जी। sure. मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो पदमचंद जी गांधी ने प्रश्न पूछा था कि आयुष्य पहले बनता है या मनुष्य गति या कोई भी गति पहले बनती है। जवाब तो दिया गया देव कुमार साहब के साथ द्वारा, लेकिन कर्म सिद्धांत में ये कहा गया है कि आयुष्य तो एक बार बनता है, लेकिन गति तो हमेशा बन सकती है, निरंतर बन सकती है। गति के लिए ये नहीं कहा गया कि एक बार बनती है। तो गति तो हम बांधते रहते हैं, लेकिन उस गति में ही कौन सी गति डिसाइड होगी वो हमारा कुछ काल जीवन का बीत जाता है तब तय होता है, प्राय 2/3 भाग। तो फिर वैसा ही आयुष्य बन जाता है, और आयुष्य में भी वो 4 में से एक आयुष्य बंधेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरा, जब जीव का मरण होता है तो जीव के लिए कहा गया है कि वो उस देह को छोड़कर एक समय में या 2 समय में या 3 समय में या 4 समय में, अधिकतम 5 समय की कहीं चर्चा मिलती है, तो 4 समय में उस जगह जन्म ले लेता है जहां उसको जाना है। अगर उसको मोक्ष में जाना तो एक समय में पहुंच जाएगा, लेकिन कुछ सीधी उसका काल कितना है उसके अनुसार वो जन्म ग्रहण करता है। तो जन्म ग्रहण करना तो उसको तुरंत करना है मृत्यु होने के पश्चात। तो उसका जैसा आयुष्य बंधा है उस आयुष्य के अनुसार वो जन्म ग्रहण करेगा। अब जहां कैसी पोजीशन मिलेगी, जहां योनि तैयार होगी उस योनि में जाकर वो जन्म ग्रहण कर लेगा। अब फर्टिलाइजेशन का टाइम है तो वहां जाकर जन्म ग्रहण कर सकता है, कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करेगा। और वो जीव ही उसका फिर आगे निर्माण प्रारंभ करता है। अगर जीव वहां नहीं गया है, जीव नहीं गया है, तो वो अंडा या जो स्पर्म है वो नष्ट भी हो सकते हैं। वो आगे बढ़ने की कोई वो नियम नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा। जीव वहां पहुंचेगा तो वो निर्माण प्रारंभ कर देता है पर्याप्तियों के द्वारा। आहार ग्रहण करके आहार पर्याप्ति लेता है, फिर शरीर पर्याप्तियां शुरू करके फिर निर्माण प्रारंभ हो जाता है।
तो वो प्रवेश कर जाता है। जब जन्म हुआ 3-4 समय में जहां भी उसको जाना है वहां प्रवेश कर जाता है। दुनिया में अनंत स्थान है, अनंत जीव पैदा होते रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कहाँ जाकर जन्म लेगा, पर जहां जाकर जन्म लेना है वो जन्म ले लेगा। उसमें ऐसा व्यवधान नहीं बताया कि वो कब जाकर जन्म ग्रहण करेगा। जैसा मुझे ध्यान में है वैसा बताया। जी जी सर, ये इसमें एक थोड़ा सा वो अंतर लग रहा है। जो देव कुमार साहब ने कहा और आपने कहा उसमें अंतर है। और जो मेरी भी समझ है उसके हिसाब से अगर गति का बंध तो हो जाता है, ये बद्धमान आयु जो है वो बदलती रहती है, बदल सकती है। उसमें जैसे कि श्रेणिक का ही उदाहरण ले लीजिए। उसने नहीं वो गति, सातवें नरक वो का बंध किया। वो गति नरक तो का उसकी बंद नहीं नरक किया गति था। फिक्स हो गई। नहीं गति नहीं तो वो, फिक्स हो गई उसकी। नहीं गति गति का तो बंद हुआ था। आयुष्य का बंद तो एक बार होने के बाद फिर वो बदलता नहीं है। गति का बंद तो नहीं बदल साहब, सकता है, आयुष्य का बंद नहीं गत, बदलता है। नहीं, गति है कि अगर नरक गति बांधी है तो बाद में देव गति भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अरे ये तो बदलते ही रहते नहीं हम नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि या तो ऐसा है मतलब जो जीवन हम में आप जैसे 8 कर्म है ना, आयुष्य कर्म को हम्म, छोड़कर 8 कर्म का निरंतर बंद चलता रहता है। तो नाम कर्म में भी हम बंद निरंतर करते रहते हैं, गति का बंद हमारे चलता ही रहता है, कभी किस गति का कभी किस गति का। ऐसा नहीं कि एक ही गति का बंद करेंगे। हम देव गति का बंद कर सकते हैं, नरक का भी, तिरंज का, मनुष्य का, किसी भी गति का बंद करते रह सकते हैं। लेकिन आयुष्य कर्म डिसाइड करेगा कि हम कहाँ जाना है, नरक में, मनुष्य में, तिरंज में, या जहाँ भी जाना है वो आयुष्य कर्म डिसाइड करेगा। गति नाम कर्म उसके अनुसार चलेगा। फिर इसका बंद तो चलता रहता, आप देखना। और नहीं मुझे सर, जैसा चलिए ध्यान में ठीक है, नहीं। देख लेंगे। ठीक ठीक है, हाँ देख लेंगे सर। सर मैं इसमें एक दो लाइन ऐड करूंगा कि गति जी का बंध तो होता रहता होगा, तभी तो जीवन चक्र से छूटकर मोक्ष गति तो चले जाते हैं। उसका तो अंत तक नहीं सर, निर्माण होता रहता है। नहीं ऐसा है जो सर, जो चार हमारी गतियों समझ है, जी मैंने वो मैं समझ गया। जो हमारी गति है, जो मेरी समझ है, वो देव कुमार साहब की समझ से मेल खाती नहीं है मैं कि कॉन्टेक्स्ट अलग है। गति गति का बंध तो अनिल जी, होता है पहले। अनिल अरे जी गति मुझे का बंद बोलने तो दीजिए। निरंतर चलता रहता है, तो पहले ही होगा नहीं वो तो। गति नहीं, गति आयु ऐसा है, आ, एक बार नरक गति बन गई आयु तो फिर वो आयु देव कर्म के गति में बारे चेंज में। नहीं होगी। नहीं आयुष्य नहीं बदलता है साहब, आयुष्य नहीं अरे बदलता साहब, है, गति तो बदल सकती है। आयु तो वो आयुष फिर कर्म के बारे में बताना चाहता सातवें नरक से आयु पहले कर्म नरक में डिसाइड कैसे आ करता गए? है। आयुष्य कर्म जीवन में एक बार ही बनता है, गति तो बनती आयुष रहती है। कर्म कैसे नहीं, बनता ऐसा है साहब? ऐसा कहीं अरे नहीं कहा अरे कि गति नाम कर्म Sir, जीवन में why एक बार not you give बंधेगा, in English? ऐसा कहीं नहीं लिखा। We are unable to follow it. धर्म ऐसा ओके, चंद जी कहीं भी आप नहीं जरा लिखा कि We are गति नाम unable to कर्म का follow बंध it. एक बार चलिए, होगा। ओके देयर इज ए आयुष्य डिफरेंस कर्म ऑफ के लिए Speak लिखा in कि ओपिनियन। जीवन में एक लेट अस बार होगा। रेस्ट हियर। We are Okay, no unable to problem. follow it. Let us rest here. There is difference of opinion. Anyway, so नहीं, डिफरेंस uh, ओपिनियन नहीं है, क्लैरिटी नहीं बोलने में। okay. अच्छा, धृति जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, प्लीज Yeah, ऐड। I want to share some observation that I found in Sam Pernia's book of near-death experiences. In that also, like the soul is outside the body, they see luminous light, they see a review, and then they decide क्या whether they दिक्कत want to है? come back into the body or not. So they have often reported that the process of entering the body is very, very painful. तो जो परमचंद गांधी बोल रहे थे कि जन्म लेना आना वो बहुत मुश्किल काम है, वो उन्होंने भी बताया हुआ है वहाँ पे reported by patients. So in a way, I see the revived patients as kind of incarnating in the same body because they decide to enter the body again. When they are attached, they say that they are attached through a cord, and through that cord, they enter back into the system if they decide to come back. That's one. And the second thing is, I wanted to share the premature deaths of some children who die after a year or two. And they also, the past life therapy and near death experiences both recount that many times the soul that was left when prematurely from the parents come back again as another child, or a grandparent who's gone comes back as another child. And there's a case of birthmarks traveling with the soul into the new birth, into the new reincarnation, as seen in Stevenson's case too. So there's a case I wanted to share about my friend's son. She lost a son at 2, first son. This first son's neck was all covered in umbilical cord, and he had to have a little liver surgery. He didn't survive, and he passed away at the age of two years.
they again had a pregnancy and another son after a year, and the new son had black and blue marks in his under his neck and the same liver area, kind of alluding to the fact that it's probably carrying the same image of the soul that passed away 2 years back. So that's how some kind of that the visual image of the soul kind of stays with the time at the time of the death, and it's a choice of the soul to choose a body or a yoni. So the choice is made by the soul, is what I understand based on the case studies in Parnia's book. That's what I want to share. Thank you. Okay, Dr. Madan Modi wants to tell something. Unmute yourself. First, unmute yourself. Yeah. वो unmute नहीं हुए हैं sir. Please unmute. Thank you, sir. You come back to English. Dr. Madan Modi, you want to tell something? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, मृत्यु के समय जीव जिस शरीर से निकलता है उसके साथ उसी शरीर के कर्म बंद होते हैं। यदि मनुष्य की मृत्यु होती है, मनुष्य का जीव है, तो उसके साथ मनुष्य जाति के कर्म ही बंद होते हैं। और उसमें भी 2 प्रकार के कर्म हैं, घाती और अघाती। और चर्चा यहाँ पे अघाती की हो रही थी, क्योंकि अघाती कर्म ही जो है हमारे नए शरीर का ब्लूप्रिंट है। जब ये अघाती कर्म पूर्व जन्म में मनुष्य के द्वारा बंधे हुए थे, तो यह दूसरी योनि में, मतलब दूसरी जाति में, दूसरे गति में कैसे प्रवेश कर सकता है, ये मेरा प्रश्न। उसके साथ मतलब जीव के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो तो जिस शरीर को उसने छोड़ा है उस शरीर के है। अब वो दूसरे गति में कैसे प्रवेश कर रहा है, वो प्रश्न। कोई उत्तर दे सकते? सर मैं कुछ बोल किससे? हमारे जो आगम है या कर्म सिद्धांत है, उसके अनुसार अगर कहा जाए तो उसमें गति और आगति का प्रतिपादन किया गया है। कौन सा जीव किन किन गतियों से आ सकता है और कौन सा जीव किन किन गतियों में जा सकता है। जिसे कहा गया कि संभावनाएं हो सकती है कोई भी, तो यही प्रश्न मेरा ये है कि ये संभावना कैसे बनती है, क्योंकि वो जा निकला सकता है। था। मनुष्य जो है ना वो सारी गतियों में जा सकता है, मोक्ष में भी जा सकता है और नरक में भी, तिरंच में भी, मनुष्य में भी, देव में भी, चारों में जा सकता है। ये उस पर निर्भर करता है कि उसका कैसा उसने आयुष्य बांधा तो मैं है। कह रहा हूँ जाने के लिए उस जीव में इंफॉर्मेशन चाहिए उस गति के, और वो इंफॉर्मेशन कार्बन शरीर में है, और कार्बन शरीर मनुष्य का है। अगर मनुष्य का जीव है तो उसके अंदर बदलाव कैसे हुआ? नहीं, कार्बन शरीर तो कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर सबका ही कार्बन शरीर होता है। कार्बन शरीर में जैसा अंकित हुआ है उसके अनुसार जाएगा। हाँ, तो कार्बन शरीर में अघाती और घाती कर्म है, ठीक है। घाती कर्म से जाति जो है निश्चित हो जाती है कि वो पशु जाति में जगह है, क्योंकि घाती कर्म स्वभाव है। जो आपका स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो जो है जाति निर्धारित करेगा। परंतु शरीर की रचना केवल अघाती कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी निर्जरा नहीं होती। जिस जाति में आपका जन्म हुआ है उसी जाति के वो जो अघाती कर्म होते हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है। तो मृत्यु के समय जब जीव जो है उसी अघाती, मतलब मनुष्य जाति के अघाती कर्मों के साथ ही निकला है, तो उन कर्मों में बदलाव कैसे होता है जिससे कि वो दूसरा शरीर धारण करे। सर मैं कुछ बोलूं? इसने जैसा कर्म बंद किया, इसीलिए ये संभव नहीं है। इसीलिए ब्रह्म कुमारी और वेदांत कहते हैं मनुष्य नहीं जन्म करता है, जिस जाति का है उसी जाति में जन्म होता है। नहीं, इसका आंसर बहुत नहीं, गति कोई भी हो सकती है। नहीं, इसका आंसर तो ये कैसे संभव है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ।
सर ये आप थोड़ा सा इसको आगम टटोलेंगे, उसमें आंसर मिल जाएगा मेरे ख्याल में। दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन ऐसा नहीं लग मे रहा आई है। आंसर दिस? ये मैं जरा दूसरे क्वेश्चन थोड़ा सा और ले लेता हूँ सर। हाँ, फिर समय बचेगा तो रिपीट कर लेंगे हम। एक मुझे मिस्टर कृष्णा दिख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो जरा कुछ अपना इंट्रोड्यूस करें कि कहाँ से हैं और ये। हाँ, मिस्टर जिससे मेरा कृष्णा बैकग्राउंड है। हेड़ा। हाँ, या मैं एक अर्थ साइंटिस्ट हूँ। हाँ, तो मुझे पूर्वी दवे जी से पूछना था कि पूर्व क्या है, पूर्ण क्या है, तो उनका दावा क्या है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? हाँ, पूर्वी दावे जो होस्ट कर रही है, तो हाँ हाँ, तो हाँ हाँ। मुझे उनसे प्रश्न करना है कि पूर्व क्या है और पूर्ण क्या है, और पूर्ण होने के बाद पूर्व क्या होता है। नहीं नहीं, वो इरेलीवेंट पूर्वी क्वेश्चन उनका है। नेम है, पूर्वी दवे, ये कोई क्वेश्चन नहीं है हाँ, सर। ये रेलेवेंट नहीं नहीं है नहीं ना। हाँ, क्वेश्चन नहीं, ये उनको रेलिवेंट पता क्वेश्चन रहेगा। नहीं है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, ठीक है, तो मतलब ओके। पूर्व का जन्म होता है ना, तो पूर्व के ओ जन्म से पूर्णता होती है, पूर्णता होने के बाद फिर क्या होता है, तो उनको पता रहेगा क्योंकि उनका नाम भी है, तो नो उन्हें प्रॉब्लम, उसका नो ज्ञान। प्रॉब्लम, ये अपने डिस्कशन से रिलेटेड नहीं है, सॉरी सर। हाँ हाँ, रमेश जी कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। शॉर्ट कहिए साहब, ये टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, देखिए, नेचर या गॉड का एक जो है वीकनेस है, और वो ये है कि नेचर किसी भी दो सिमिलर चीजों को नहीं बना सकता। एग्जैक्टली सिमिलर थिंग्स कैन नॉट बी मेड। जबकि मनुष्य यह कर सकता है, दो क्या, दो चाहे कितनी चाहे उतना मनुष्य जो है एक समान वस्तु पर निर्माण कर सकता है। तो क्लोनिंग नेचर में पॉसिबल नहीं है, परंतु मनुष्य क्लोनिंग कर सकता है। कोई भी दो जीव आप देखें, तो यह कैसे संभव, यह दिखाता है कि क्लोनिंग में जो है, यह जैन सिद्धांत जो है उसको क्लोनिंग सिद्ध करता है। आवश्यकता है उसको ठीक से रैशनली साइंटिफिकली समझने की। हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म जीवित भाग सेल है। सेल भी एक जीव है, तो सेल की भी आत्मा है। हमारे अंग जीवित है, तो अंगों की भी आत्मा है। पूरे शरीर, इन सभी चीजों से मिलके हमारा शरीर बनता है। तो इन सभी आत्माओं का जो रिजल्टेंट है, और आत्मा का अर्थ है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ज्ञान। तो इसका जो रिजल्टेंट ज्ञान है वो भी, वो पूरे बॉडी का है, और वो जो है हमारे शरीर की आत्मा है। तो जब तो रिप्रोडक्ट तो ये साहब जल्दी से करिए साइंस साहब, और ये शॉर्ट। जैनिज्म, एक मिनट बस, साइंस और हाँ जैनिज्म दोनों स्वीकार करते हैं कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। तो यदि जो है आत्मा है, आत्मा में न जीव है, न प्राण है, न कॉन्शियसनेस है, तो आत्मा के द्वारा तो उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। परंतु जीव में कॉन्शियसनेस भी है, लाइफ भी है, तो जीव जीव के द्वारा जीव की उत्पत्ति हो सकती है। ओके। तो सूक्ष्म जीव जो है सेल है, तो दो सेल से सेल की उत्पत्ति होती है। इसीलिए साइंस में कहा जाता है कि लाइफ इज नॉट क्रिएटेड, कैरिड फॉरवर्ड थ्रू रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन। और हम कहते हैं जीव की जीव के साथ उत्पत्ति होती है, परंतु केवल एक अंतर है। जैन दर्शन कहता है कि जीव के साथ उत्पत्ति होती है, परंतु जीव की संख्या कांस्टेंट रहती है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लाइफ है। जबकि साइंस कंजर्वेशन नहीं मानता, इतना ही अंतर है। और अगर आप देखेंगे तो फिर जो सारी की सारे प्रोसेस है, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, बर्थ, डेथ वगैरह, वो सारे जैन सिद्धांत के अनुसार सिद्ध कर सकते हैं। ये मैं कहना ओके, चाहता ठीक है। हाँ, ये रमेश चंद जी भी कुछ कह रहे थे। हाँ, जी सर, मैं कोई क्विकली खास सर। नहीं, नहीं मैं कुछ हाँ खास नहीं बोलता, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जो डिस्कशन चल रही थी ना, कि इसका जन्म वहां कैसे हो जाता है, क्या साथ जाता है क्या नहीं जाता। देखिए, कर्म बंध तो 8 प्रकार के कर्मों की 148 भी कितनी प्रकृतियां हैं, उनमें कितना कर्म बंधा हुआ है, कितना
क्वांटिटी, क्वालिटी, इंटेंसिटी, ये सब भी तो डिपेंड करता है। कर्म जो उदय में आएगा उससे उससे निकट भविष्य होगा। बाकी कर्म तो बाकी बधे हुए जो हैं, ये मेरी बात ठीक है। कर्म उदय क्या, कर्म उदय इज द मेन कारण जो इस समय प्रकाश में आ रहा है। एक ओके पूरा बॉल है जो सरफेस पे है, वही जो कर्म उदय में आता है और खिल जाता है। कुदरत से खिलता है और प्रयास करके ठीक खिलाना होता है तो मोक्ष होता है। धन्यवाद। ठीक है ठीक है। ज्ञानचंद जी साहब, आप क्या कह रहे थे? जरा एक लाइन में ही कहिए आप। मैं ये हाँ कह रहा था हाँ। कि हम जो है जीव को, जिसकी लाइफ जो है कुछ सेकंड होती है, उसको 10 साल 20 साल 50 100 साल तक रख सकते हैं। अनफर्टिलाइज को भी रख सकते हैं, स्पर्म को भी रख सकते हैं, एग को भी रख सकते हैं, और फर्टिलाइज को भी फ्रीजिंग स्टेट में जितना चाह उतना 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल तक रख सकते हैं। तो ये आयु कर्म ठीक की है। जो हाँ बात कर रहे हैं, अभी आयु जो कर्म की बात कर रहे हैं, वो आयु कर्म कहाँ गया उनका? जिसकी नहीं, आयु आयु जो है कर्म को हम नॉर्मल। बाद में डिस्कस करेंगे सर। ये आज तो ये रिकार्नेशन की बात ही कर रहे हैं बस सर। नहीं नहीं, इनकारनेशन हाँ की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, फिर बहुत बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा नहीं उसके नहीं ऊपर, वो प्लीज। अनिल जी, सॉरी मैं सॉरी सर, रीन मैं रीन का मैं समझ गया आपकी बात रीइंकार्नेशन। सर। अब अच्छा, आप वो देखिए, रीन का फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। उधर फीमेल का एक एग, अंडा एक एग होता है। मेल के तो 2 अरब से लेकर 4 अरब तक शुक्राणु होते हैं, और एक प्रवेश करता है। बाकी सबों में जीव है, सबों में कर्म है, सब में जीव कर्म है। तो रीइंकार्नेशन की जब बात कर रहे हैं, बोलने वाले रीइंकार्नेशन बोले ही नहीं, कोई भी नहीं बोला। देव कुमार जी भी नहीं बोले, वो कर्म थ्योरी में बोले। कर्म इज ए डिफरेंट थिंग। रिकार्नेशन, रिकार्नेशन में कर्म प्लस बॉडी दोनों है, जीव है। तो हमें जीव पे बोलना है। मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि चलिए जीव को, ठीक। जिसकी नॉर्मल लाइफ कुछ चंद सेकंड होती है, उसको मैंने खुद ने 10 साल 15 20 साल तक रखा है, और फिर दोबारा ठीक है सर। फर्टिलाइजेशन, ठीक अब है सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर, यहीं इम्प्लांट पे हम किया है। खत्म करेंगे। हाँ, सर वो मेरा एक एक, मूर्छित एक जीव है, सॉरी। नहीं, मूर्छित अब सब जीव है, रुकते हैं हम। रमेश जी अभी रुकते हैं। मूर्छित और मैं जीव है सर सॉरी, वो। मैं एक धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाश जी बड़जात्या स्वीडन से पधारे थे हमारे बीच में। वो अभी निकल गए, नहीं मैं चाह रहा था कि उनसे भी कुछ पूछता। सो वो हम उनको नहीं ले पाए, लेकिन अगली बार आएंगे तो उनको जरूर सुनेंगे। तो इसके साथ ही हम ये डिस्कशन सेशन तो यहाँ खत्म करते हैं। भंडारी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप अपना कुछ कंक्लूडिंग बोलिएगा सर। हम्म। A very interesting discussion, sir. I'm grateful. I want to express my appreciation to Dr. Subhash Jain Saab and Anil Kumarji Saab for conducting this very interesting discussion. Now, time is always short, but I'll just take, I have few observations and one or two small questions. We can discuss, continue it next time also. बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। पहली चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि what I understood from Dr. Dhruti Rathi is there's personal experience is the ultimate proof. You don't need any other proof after that. So we must keep that in mind. I mean, we are looking for proof. The point is that our proofs are limited by our knowledge. We only know about what science has told us. So we say it is gamma rays. But I think that will be limiting the communication mechanism of the soul to just one dimension. I mean, it can communicate in many ways. So we are limited by what we know by science, and the soul is more potent and more has multiple dimensions. So that limitation we should keep in view in this observation or whatever discussion we had. The second point which Dr. Modi made is that we are dying and getting rebirth every moment. I think this is what he said. So that also is one way of looking at it. And of course, both the other speakers, Dr. Dev Kumar is very knowledgeable, and Dr. Naveen Mehta also brought out many points. I don't have much time now. We want to wind up, but there is one point I want to make. आई हैव रेड सम, एक प्रसंग है कि कोई मुनिराज की डेथ हो रही थी, तो भगवान से पूछा गया कि अब ये कौन सी गति में जाएंगे। तो एक क्षण में तो उन्होंने कहा ये नरक में जाएंगे, और दूसरे क्षण में उन्होंने कहा कि नहीं ये देव गति में या दूसरी गति में जाएंगे।
what I understood from that context is that जो लास्ट भाव होते हैं मृत्यु के पहले, that is the overpowering, over determining factor in the गति. ऐसा प्रसंग आया है, ऐसा मैंने पढ़ा है. If somebody wants to clarify on that point, because that if that last moment में आपके क्या भाव हैं, वो अगर ओवर पावरिंग हैं, तो फिर ये कर्म बंध और ये गति और आयुष गति का बंद होना और गति का बंद होना और ये सब फिर गौण हो जाते हैं. ऐसा तो क्या मैं देव कुमार जी साहब से ये प्रश्न पूछ सकता हूँ फॉर माय क्लैरिफिकेशन प्लीज? Engineer sir, actually what you said is I also read it. उन्होंने ये कहा इस टाइम पे इनका what you call आयु बंद होगा और इस गति में जाएंगे. उनका प्रश्न ये था, इस भाव से ये चला रहे हैं, तीर चला रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इस टाइम पे इनकी आयु कर्म बंद होकर डेथ जाएगा, डेथ में जाएंगे, he will reach such and such a thing. The moment he changed his भाव, जैसे अभी इसके it is loaded, अभी बंद नहीं हुआ. बंद होता तो जरूर कहते हैं ये इस पुराना गति में जाएंगे. अभी तक उस जीव का आयुष्य बंद नहीं, गति बंद नहीं हुआ और आयुष्य बंद नहीं हुआ. ये मतलब है. जी ये बिल्कुल ठीक कहा साहब. ये जब तक बंद नहीं होता है, ये बंद होना एक अलग बात है. एक बार बंद हो गया गति का तो वो नहीं बदलेगा. जैसे अपने भाव हैं, कभी बहुत ही निर्मल हो जाते हैं, कभी गुस्से वाले हो जाते हैं. अगर कोई पूछे कि तुम बहुत गुस्से में हो, अगर इस टाइम ही मर जाए तो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा. लेकिन उसका बंद हुआ है या नहीं हुआ है नरक गति का, वो एक पॉइंट है. एक बार अगर बंद हो गया तो फिर वो चेंज नहीं होगा. बस इतना ही है. ये भाव तो हमेशा बदलते रहते हैं. कभी स्वर्ग जाने के भाव भी होते हैं, कभी नरक जाने के भी होते हैं, लेकिन बंद नहीं होता तो है. अगर तब तक वो भाव सर अगर बंद हो जाए तो वो बाद में भाव इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? एक बार बंद हो गया तो अगले भाव में उसी में जाएगा वो, और आगे के भाव के लिए कुछ वो अपने बंद करता है, वो अलग बात है. मुझे तो ये इंसिडेंट बहुत अच्छा लगा कि सिंस वी कांट. भाई साहब आई वांट टू ऐड. नहीं सर, मान लीजिए मेरा आयु बंद हो गया, दैट इज आई हैव अर्नड इट. उसके बाद तो मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारा तो नरक गति हो गया, नरक, और वो आई कैन बी रिफॉर्मिंग so that next life will be better than that. उसी के अंदर ही quality of life can be improved. That's the idea of it. It's not the end of it. So yeah, I'm talking about Narak Gati. Because Manushya Gati, naturally there are opportunities to improve oneself. डॉक्टर ये नरेंद्र, ये इसके ये श्रेणिक राजा का जो उदाहरण आता है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है इस संबंध में जैन व्यू को, कि उसने नरक, हालांकि अगले भव में वो तीर्थंकर होंगे, लेकिन इस भव के बाद में जो मर करके गए थे नरक में गए थे, जब उनके परिणाम इतने अधिक निर्मल हो गए तो वो बाद में तीर्थंकर के लिए भी उन्होंने वहां पर वो बंद कर लिया. लेकिन नरक गति का बंद छूटा नहीं. उसमें ये जरूर हुआ कि सातवीं नरक का बंद किया था, वो घट करके पहले नरक का हो गया, और पहले नरक में भी बहुत ही मतलब उनके कम कष्ट वाला, तो उसको एक बार बंद हो गया. अब जबकि उसके बाद अगली बार का भव का बंद भी उन्होंने कर लिया, तीर्थंकर बनेंगे अगली बार. तो इससे आप ये मतलब एक बार जो अगले भव का बंद हो गया वो तो रहेगा, उसमें फिर चेंज नहीं होगा. फिर अगली बार जो भाव परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं, उससे आयु का घटबढ़ हो सकता है और उसके आगे की गति का बंद हो सकता है. वो एक अलग पॉइंट है. तो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं. जो लास्ट क्षण में जो भाव हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो बंद हो गया वो तो डिटरमिनिंग फैक्टर है. ऐसा है सर? Sir, bhav is always important because we don't know when the ayu bandh is going to take place. No, I took it as a very good example. Since we can't predict when we will die, we should always keep good bhav. Yeah. So that is the lesson. I mean, I've learned from this incident. कि आप हमेशा अच्छे भाव रखो all the time, because you never know when you are going to die. So no exception for that. That is what I appreciated that point. बट ये जो इसकी टेक्निकल जो सीक्वेंस है कि पहले गति बंद हो जाती है, फिर आयुष बंद हो जाता है, और फिर भाव से उसको आप थोड़ा माइल्ड या
वर्ष कर सकते हैं. I mean, that is, I Yeah. think, the sum total of my understanding. Thank you very much for नहीं, क्या ध्रुति very. जी, जरा एक सेकंड, ये Yeah. ध्रुति जी कुछ और, I'll हाँ just हाँ take a short second. I'm sorry, there's noise in my background. I just wanted to share an experience of suicidal death cases reported in Parnia's book. There was a accountant who was revived after committing suicide, and his experience, he says, was that indicates that the future is a little probabilistic. Like future can change. He saw the future vision of his. If he didn't go back to the body, was that his family would be suffering because his wife was suffering and his children would have a bad life. So that was the vision he saw. If he had continued to die, that would have happened. But then that vision made him go back to his body, and he realized that there's no escape from the troubles from what he's running from. He will have to come back and face the same troubles till he learns to accept and work on it. So basically, what it gives me is future is probabilistic. Till the end, you decide, and your emotions decide at that point of time what your birth is. So that's what I wanted to make it Yeah. clear, that it's still in our hand. You are And right. it can keep changing till the last point of What time. you And are that's why, saying, Dr. Dhruti ji, is that future is participatory. You can influence it. right, That is right, where right, Purusharth is important. right, I right, think that's right. a very important point. Yeah. So, and I feel हो that गया, थैंक यू. this is a very dark subject that we don't know much about. Near-death experiences, recalled experience, and past life regression. Even Therapanthi Sadhviji confirmed to me that she has guided so many people to feel it. So to really find knowledge, we really need to take them seriously and understand what's going on, and then plot our understanding of the whole concept, because that's literally the same information that we can get from there. We don't need to die to get this information. We just need to experience what's going on through these meditation techniques, is my humble submission to all of you. And thank you again. Yeah, this is very important. टाइम है, we reached up to by 9:40 p.m. India time right now. I think it is a long session. And very interesting, So sir. On Anil behalf Bhai of sir, all the one second, sir, participants, one second. I want Anil to. Bhai sir, somebody has mistook. अनिल भाई साहब ने कहा कि श्रेणिक नरक में आके मोक्ष जाएंगे. यहाँ पे किसी ने लिखा नरक से मोक्ष जाएंगे. इट्स नॉट नरक से, नहीं, नरक नरक से मनुष्य होंगे और मनुष्य से वो मोक्ष लिखा है, उन्होंने जाएंगे. लिखा, मुझे लगा आपको आपने पढ़ा नहीं. आई थॉट आई वांटेड टू से दैट. हाँ, मैंने पढ़ा नहीं है, Not वो an- ठीक है. नहीं, ठीक है वो, हाँ हाँ, वो मनुष्य में तो आना ही पड़ेगा मोक्ष जाने के लिए, वो तो Yeah, खैर ठीक है. yeah. हाँ, anyway. So, So sir, before let us. we conclude, I want to thank on behalf of JAS all the speakers, Dr. Anil Kumarji and Dr. Subhash Jain, who started this, and all the four speakers. I think time is always short, but we have another opportunity later on. Purviji will tell when the next meeting is, and I think then we can include. Thank you all on behalf of JAS. Purvi ji, you have some announcement for Tomorrow we next. are having Samosa class from 8:30 to 9:30. So all are welcome to join. And continuation of this RTM will be on next Tuesday, that is 15th July. So all are welcome to Okay. join. And I लेकिन request all the एक चीज हम भूल गए थे. हालांकि हम लोगों ने ये कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था डॉक्टर भंडारी साहब को. एक बार फिर से हम उनको बधाई देना चाहते हैं. जैना से उनको अवार्ड मिला, हम सबों को बहुत प्रसन्नता है. बहुत 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 बधाई बहुत सर. बधाई. ये सर आप पुनः सब बधाई. लोगों का जॉइंट जेएस का Many रिकॉग्निशन है. congratulations, sir. हाँ, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीबॉडी. ऐसा है कि मैं शुरू में भी कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा अपना टाइम शॉर्ट हो जाता है, उसमें हमको 2-3 मिनट निकल जाएंगे. तो एनीवे, very kind of you. I am happy that the work of JAS, which is based on all everybody's effort, has been recognized by JENA, and I take it as a challenge to do something significant to justify this award. So let us all work together. Thank you very much. Thank you. So बहुत बहुत बधाई सर. And I let us request all the speakers to land our come session back. today. सबों को सादर जय जिनेंद्र. जय जी. ये कल ये समय सार के बाद में हम नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मिलेंगे आरटीएम में, और उसके अंदर क्योंकि डिस्कशन का टाइम कम रह जाता है तो देखते हैं या तो 3 लेक्चर रखेंगे, कम कर सकते हैं, और देखेंगे उसको किस तरह से करते हैं. सर डॉक्टर नवीन मेहता साहब, आप अपने स्लाइड शेयर करेंगे?
देव कुमार जी साहब ने तो स्लाइड शेयर की है, एंड माय हाँ, रिक्वेस्ट देव कुमार इज साहब का आ गया है। if you have something written up on your talk, I'll then send please share it, because नहीं, ये इनका ये लेक्चर मुझे ये मिल गया है, इनका आर्टिकल। हाँ, वो बुकलेट में मैंने रख लिया है उसे। इनका ये प्रेजेंटेशन तो नहीं मिला है नवीन जी का। हाँ, I'll send the PPT to Dr. Anil Kumar Jain. ओके, आई विल शेयर पूर्वी इट। जी आप शेयर करिए, people like me have to ओके, study it in more detail and read it several times to understand the nuances. Sure. So thank you very much, ओके, sir. Yeah, I'll थैंक share यू it सर, too. Thank थैंक यू, you. Yeah, Bye. please. Bye-bye. थैंक यू वेरी मच। Bye. Thank you, नमस्कार, everybody. जय जी। Jainam, Jai